عثمان 3 بجے کے قریب گھر واپس آیا۔ سبھی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رامین جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسے ابھی تک وقار کی طبیعت کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں ملی تھی۔ اس نے شہیر اور اشرف صاحب کو کافی بار کال کی پر ان کا نمبر مل کے نہیں دے رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی، اسی لیے اپنے رب سے اپنے اکلوتے بھائی کی صحت کی دعائیں مانگنے لگی۔ لاکھ ناراضگی سہی پر اس کا وقار کے ساتھ خون کا رشتہ تھا۔ عثمان نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور خود گہرا سانس لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اتنی لمبی لمبی دعائیں مت مانگو، تمہارا بھائی مرا نہیں، بچ گیا ہے، معمولی سی چوٹ لگی ہے۔ وہ موبائل نکال کر اسے یوز کرتے بولا۔ رامین نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور جائے نماز کو فولڈ کر کے رکھا اور اس کی طرف دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اسے کچھ ہو۔ بہت خون نکلا تھا، اسے بہت گہری چوٹ لگی ہے، اسی لیے تو بے ہوش ہو گیا۔ آپ کو اسے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ وہ اپنا دوپٹہ سر سے اتارتے نم لہجے میں بولی۔ اب اس چیز میں بھی تم مجھے ہی غلط کہنا، آخر کو تمہارے بھائی کی جو بات ہے اور تم لڑنے کی بات کر رہی ہو، میرا بس چلے تو میں اسے اس گھر میں داخل بھی نہ ہونے دوں۔ میری بہن کی زندگی برباد کر کے اب منہ اٹھا کے چلا آیا معافیاں مانگنے۔ سالے کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا میں۔ عثمان غصے سے چلایا۔ آپ اس معاملے کو سکون سے بھی تو حل کر سکتے ہیں، کیوں فضول میں بار بار لڑائی کرتے ہیں؟ رامین اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ رامین میڈم، تم مجھے یہ بلا وجہ کی نصیحتیں مت کرو۔ تمہارے بھائی کو اب پتہ چلے گا کہ اس نے کس کی بہن کی زندگی برباد کی۔ اپنی بہن بس جو رہی ہے، اگر اسی دن تمہارا قصہ بھی ختم کر دیتا نا، تب جا کر اسے احساس ہوتا۔ عثمان لیٹ کر اپنے اوپر کمبل لیتے نہایت ہی سخت الفاظ بول گیا۔ رامین نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا جو کمر کے بل لیٹا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے اسے بہت بار وقار کی وجہ سے طنز تو مارتا رہتا تھا، پر اتنی بڑی بات اس نے آج پہلی بار کی تھی۔ رامین اپنی بھیگی آنکھیں لیے بیڈ کی دوسری طرف کروٹ لے کر سو گئی۔ تو ہمارے رشتے کی ایک نظر میں بس اتنی سی اوقات تھی، 1 منٹ میں کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا۔ رامین نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا جو اتنی بڑی بات کر کے اب آرام سے سو رہا تھا۔ رامین کو یاد تھا بچپن سے دونوں کی منگنی ہو چکی تھی، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ عثمان کا دن اس کے ہاتھ کی چائے پی کر ہوتا تھا اور رات اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کر کے ہوتی۔ دونوں کے درمیان دوستی محبت کا ایک مضبوط رشتہ بن چکا تھا، پر جو بھی ہوا اس کے بعد عثمان بالکل ہی بدل گیا۔ وہ ہر وقت بات بے بات غصہ کرنے لگا۔ رامین چپ کر کے سب سنتی رہتی۔ گھر میں سوائے علیزے کے کسی کو عثمان کے رویے کا معلوم نہ تھا، کیونکہ سب کے سامنے وہ ہنستی مسکراتی رہتی، کمرے کی باتوں کو کمرے تک ہی چھوڑ کر جاتی۔ پر شاید اب یہ بات کمرے تک رہنے والی نہیں تھی۔ 4 بجے وقار کو ہوش آ گیا۔ وہ آس پاس دیکھنے لگا۔ اشرف صاحب اس کے ہوش میں آتے ہی پاس آئے۔ وقار تم ٹھیک ہو نا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا تو وقار نے ہاں میں گردن ہلائی۔ وہ پاس کرسی پر بیٹھے۔ طلحہ صاحب نے ڈاکٹر کو بلوایا۔ وہ اندر آیا اور اس کا چیک اپ کیا۔ 6 بجے تک ان کو ڈسچارج ملنا تھا۔ اب وقار کافی حد تک نارمل تھا، ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اشرف صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے بیٹے کی وجہ سے تم اس حالت میں ہو، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اشرف صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو وقار نے جھٹ سے ان کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیے۔ تایا جان کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ عثمان نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا۔ آپ تو جانتے ہیں ہمیشہ سے ہی وہ غصے کا بہت تیز ہے، اور معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میری وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ اللہ کی قسم تایا جان بوجھ کر میں نے بھی وہ سب نہیں کیا تھا، مجھ سے وہ سب ہو گیا جو اب میں بدل نہیں سکتا۔ وقار نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں، اور اس معاملے کو غصے اور جذبات سے حل نہیں کر پائیں گے ہم۔ میں جانتا ہوں تم سب ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اس رشتے کو واپس اپنانا چاہتے ہو، پر وقار اب اس سب کا فیصلہ علیزے کرے گی۔ اسے تمہارے ساتھ رہنا ہے یا نہیں، تم اسے مناؤ۔ ہم خود تم دونوں کا رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور کون سا ماں باپ اپنے بچوں کا گھر توڑنا چاہتا ہے؟ تم بس علیزے کو منا لو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اشرف صاحب نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وقار نے ہاں میں سر ہلایا۔ 6 بجے کے قریب ان کو چھٹی مل گئی اور وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وقار ابھی یہیں نیچے کسی کمرے میں سو جاؤ، اوپر مت جاؤ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری۔ طلحہ صاحب نے وقار کو اوپر جانے سے ٹوکا۔
क्योंकि वो काफ़ी वीकनेस फील कर रहा था। शहीर ने उसे एक तरफ से पकड़ा हुआ था। नहीं चाचू, मैं ठीक हूँ, ऊपर ही सोऊंगा। वकार हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। वकार, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? आबदा बेगम, जो कि अस्पताल से आने के बावजूद सोई नहीं थी, वो तब से तस्बीह पढ़ते हुए वकार की सेहत की दुआएं कर रही थी। अभी जब उसकी आवाज़ सुनी तो फ़ौरन बाहर आई। अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप ये रो रो कर अपनी हालत क्यों ख़राब कर रही हैं? जाएं, अब सुकून से सो जाएं। वकार ने उन्हें अपने हिसार में लेकर सर पर बोसा देते हुए कहा, और आबदा बेगम को मौका मिल गया। वो खूब रोईं। वकार ने बहुत मुश्किल से उन्हें संभाला। माँ थी, अपने बच्चे से ज़्यादा देर नाराज़ कहाँ रह सकती थी। वकार ने उन्हें चुप करवा कर रूम में भेजा और खुद शहीर के साथ अपने कमरे में चला गया। वकार भाई, आप आराम करें, मैं आपकी सलामती की खबर ज़रा घर में सबको बता दूं। शहीर उसे बेड पर लेटाते हुए बोला। यहाँ ज़्यादा लोगों को मेरी परवाह नहीं, तुम बिला वजह जहमत मत करो, सो जाओ जाकर। वो तंजिया अंदाज में जैसे खुद पर ही हंसते हुए बोला था। ये तो आपकी सोच है, हालांकि सभी को आपकी फिक्र थी। इनफैक्ट बहुत करीबी लोगों के तो मैसेजेस भी आए थे। शहीर, बताओ मेरे साइया जी किस हाल में है? शहीर शरारती अंदाज में बोला। वकार उसका मतलब समझ गया था। वो हल्का सा हंसा, मतलब अभी भी काम बन सकता था। तभी उसकी नज़र हल्के से खुले दरवाजे पर पड़ी, जहाँ पर किसी का आंचल लहरा रहा था। वो समझ गया कि कौन है। उसने इसीलिए तो मैसेज किया होगा कि कहीं अगर मर गया तो उसके भाई पर इल्ज़ाम ना आ जाए। मेरी फ़िक्र कहाँ, अब तो वो नफ़रत करती है मुझसे। वो ऊंची आवाज़ में बोला ताकि बाहर आवाज़ पहुंच जाए, और बाहर खड़ी अलीज़े ने उसकी बात सुन भी ली थी। वो दिल के हाथों मजबूर होकर उसे देखने आई थी, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसके अल्फाज सुनकर वो वहीं से मुड़ गई। वकार ने उसका जाना नोट कर लिया। आराम करो, मैं चलता हूँ। शहीर उसको दरवाजे की ओर देखकर जानबूझकर ऊंचा बोलना नोट कर चुका था, और उसने भी अलीज़े का दुपट्टा देखा था। तभी वो कहता बाहर निकल गया, और वकार ने आंखों पर बाजू रखकर सोने की कोशिश की। कल रात को जो गुंडागर्दी हुई वो मैं बिल्कुल भी कबूल नहीं करूँगा। मुझे अगर उसी वक्त उठा देते, वहीं सभी को सीधा कर देता। तमाशा बना कर रखा है, घर को लड़ाई का मैदान बना दिया है। 3 दिन में मिशेल की शादी है, और तुम लोगों को लड़ने से फुर्सत नहीं। उस्मान, वकार मेरे यहाँ बुलाने पर आया है, तुम बार बार उससे लड़ने मत लग जाया करो। हशमत साहब, जिनको सुबह ही रात का वाकया मालूम हुआ था, इंतहाई गुस्से में थे, और सभी जानते थे कि हशमत साहब जब गुस्से में आ जाते हैं तो उनके जलाल से बचना नामुमकिन हो जाता है। अभी सारे घर वाले टीवी लाउंज में बैठे उनकी बात सुन रहे थे। वकार भी उसी में शामिल था। अगर आप चाहते हैं ना ये सब दोबारा ना हो, तो निकालें इसे यहाँ से, वरना यहाँ तो यही होगा, चाहे आप जो भी कर लें, क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स को अपने सामने अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरी बहन का मुजरिम हो। उस्मान अपनी जगह से उठकर उनके सामने आ खड़ा होता हुआ बोला। ठा, तुम अपनी ये 2 टके की अकड़ कहीं और जाकर दिखाओ। अलीज़े सिर्फ तुम्हारी सगी नहीं, मेरी भी पोती है, और वकार मेरा पोता है। अभी इस घर के बड़े मरे नहीं जो तुम यूं उठकर सबको डरा रहे हो। उनके रिश्ते का जो करना होगा ना, कर लेंगे हम। तुम बिला वजह दरमियान में मत आओ। हशमत साहब ने उसके गाल पर खींचकर थप्पड़ मारते हुए कहा। सभी ने हैरत से हशमत साहब की तरफ देखा। वकार इस सब का खुद को कसूरवार समझ रहा था। बड़े, अगर आप इतने ही सब बड़े होते तो तभी फैसला क्यों नहीं किया? 5 साल बर्बाद क्यों किए? अब मैं आप सबकी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। माज ने बहुत पहले मुझसे अलीज़े के रिश्ते की बात की थी। वो उसे और आयान को अपनाना चाहता है। मिशेल की शादी के बाद इनकी तलाक होगी, और मैं बहुत जल्द माज और अलीज़े की शादी करवा दूंगा। उस्मान ने गुस्से से सब बोल दिया। अलीज़े शौक के आलम में उस्मान की बात सुन रही थी। वकार ने यह सब सुनकर अपना माथा मसला और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अलीज़े ने उसकी तरफ देखा कि अब ये क्या बोलेगा, कहीं यह भी तलाक ना दे दे। जानता हूँ जो कुछ हुआ था वो किसी तौर काबिल कबूल नहीं था, पर अब माजी को बदल नहीं सकते हम। उस्मान अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बस एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। रिश्ता मेरे और अलीज़ा के दरमियान है। मैं इस रिश्ते को बचाने का बस एक आखिरी मौका मांग रहा हूँ। आज 12 तारीख है। अगले महीने की 12 तारीख को जो फैसला अलीज़े करेगी वो मैं और आप सब मान लेंगे। अब वो मेरे साथ रहना चाहती है या मुझसे तलाक चाहती है, वो सब उसी पर डिपेंड करता है। और दूसरी अहम बात जो मैं करना तो नहीं चाहता, पर अभी की सिचुएशन को देखते हुए कहना पड़ेगा, मिशेल की शादी के बाद उससे अगले दिन ही मैं ये घर छोड़ दूंगा। मैं चाहता हूँ मैं ज़ैनब को लेकर नए घर में शिफ्ट हो जाऊँ। इससे उस्मान और मेरी लड़ाई नहीं होगी और घर का माहौल भी ठीक रहेगा।
आई नो काफ़ी लोग ज़ैनब को भी पसंद नहीं करते और मैं उसके जहन में आए सवालों के बाद में जवाब नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मैं उसे लेकर नए घर में शिफ्ट हो जाऊँगा। अलीज़े को अगर 1 महीने बाद भी लगा कि ये रिश्ता बेकार है, टूट जाना चाहिए, तो मैं खुद साइन कर दूँगा तलाक के पेपर्स। वक़ार ने सबकी तरफ देखते हुए अपना फ़ैसला सुनाया। बात करते हुए उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसकी आखिरी बात पर कितने ही लोगों के दिल भर आए, जिनमें आबदा बेगम सबसे पहली थी, क्योंकि उन्होंने ही ज़ैनब को डांटा था। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ, उससे 1 दिन भी ऊपर नहीं दूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि अलीज़े अपने भाई के फैसले को ही कबूल करेगी। उस्मान वक़ार के पास कदम कदम चलता आया और यकीन भरे अंदाज में कहा, और आखिरी बात पर अलीज़े को देखा जो खाली नज़रों से उन दोनों को देख रही थी। वक़ार बिना जवाब दिए पलटा और शिकस्ता कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। सभी नॉर्मल होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सब उस लड़ाई को भूल गए और शादी में मसरूफ़ हो गए। आज मेहंदी थी, सभी मेहंदी के लिए तैयार हो रहे थे। वक़ार और शहीर ने गार्डन में सारा डिकोर संभाला हुआ था। घर की ख़वातीन तैयार हो रही थी। हाँ बोलो आहत, क्या प्रॉब्लम हुई? अच्छा रुको मैं चेक करता हूँ। शहीर मेरे कमरे से लैपटॉप लाना। वो कान से फ़ोन लगाए आहत से बात कर रहा था और साथ डेकोरेशन वालों को इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था। शहीर उसका लैपटॉप लेकर आया। वो वहीं टेबल पर रखकर कुर्सी पर बैठा और जल्दी से हाथ चलाते काम करने लगा। वो 3 घंटे मुसलसल काम करता रहा। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा हर सू छा रहा था। उसका काम खत्म नहीं हो रहा था। डिज़ाइंस देने की वजह से अब उन्हें अपने काम में मसला हो रहा था, जिसका वो हल निकालने की कोशिश कर रहा था, पर अभी तक कुछ हाथ नहीं आया था। वक़ार, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? कुछ ही देर में मेहमान आने वाले हैं, हद करते हो बेटा। आबदा बेगम गार्डन में उसे काम में मसरूफ़ देख डांटते हुए बोली। बस अम्मी, हो गया 2 मिनट, वो तेज़ी से टाइपिंग करते हुए बोला। आबदा बेगम ने पकड़कर उसका लैपटॉप बंद कर दिया। वो अरे अरे करता रह गया। आबदा बेगम उसे ज़बरदस्ती अंदर ले गई। वो अपने कमरे में आकर वॉशरूम में घुस गया। शहीद, मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें अच्छे से वेलकम करना। अरूज अपना लहंगा संभालती बाहर गार्डन में शहीद के पास आई। वो ऑरेंज लहंगा और सेम ऑरेंज कुर्ती पहने, साथ में पिंक दुपट्टा अच्छे से सेट किए हुए थी, फुल मेकअप किए, खूबसूरत सी ज्वेलरी पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। शहीद ने उसे एक नज़र देखा और चेहरा मोड़ लिया, क्योंकि उसका दिल बेख्तियार धड़का था। तुम्हारे फ्रेंड्स कोई वीआईपी हैं जो मैं उनका इस्तकबाल करूं? वही तुम्हारी चिपकू दोस्तें होंगी। शहीद उसे चिढ़ाते हुए बोला। ओह हेलो, मैं वीआईपी, मेरे फ्रेंड्स वीआईपी। अगर उन्हें अच्छे से वेलकम ना किया तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में हुई लड़ाई आगा जान को बता दूंगी। जानते तो हो आजकल आगा जी को लड़ाई के नाम पर ही गुस्सा आ जाता है। अरूज ने उसे ब्लैकमेल करते हुए कहा तो शहीर ने उसे घूरा। ओ 1.5 फुटिया, मुझसे ये ब्लैकमेलिंग वाली गेम मत खेलना, वरना मुझे अच्छे से जानती हो। शहीर उसके छोटे कद पर कमेंट करते हुए बोला, और अरूज को यही एक बात हद से ज़्यादा चुभती थी, और वही हुआ। अरूज ने उसके पास कुछ तलाश करना चाहा जो उसके सर पर दे मारे। शहीर उसका इरादा समझ गया और वहाँ से भागा और अरूज बमुश्किल अपना लहंगा संभालती उसके पीछे दौड़ी। मेरा पोता तो शहजादा लग रहा है, माशाल्लाह। अलीज़े आयान को बाजू से पकड़े बाहर लाई। वो येलो कुर्ता कैप्री में छोटा सा शहजादा लग रहा था। आबदा बेगम ने उसका माथा चूमते हुए कहा, अलीज़े ये वेस्टकोट वकार के रूम में रखा, वो तैयार हो रहा है। मैं आयान को लेकर बाहर जा रही हूँ, मेहमानों का इस्तकबाल भी तो करना है। आबदा बेगम हाथ में पकड़ी वेस्टकोट अलीज़े को पकड़ाते हुए बोली और बिना उसकी बात सुने आयान को लेकर बाहर चली गई। अलीज़े ने इधर उधर देखा कि कोई मिल जाए तो उसके हाथों भिजवा दे, तभी अरूज गुस्से में अंदर आती दिखाई दी। अरूज मेरी बात सुन, अलीज़े ने उसे अपनी तरफ बुलाया। अलीज़े उसके पास आई। आपने मेरे दुश्मन शहीर फुल बागड़ बिल्ले को देखा है कहीं? अरूज इधर उधर देखती शहीर के बारे में पूछने लगी। नहीं, उसको रहने दो, मेरी बात सुनो, ये वेस्टकोट। अलीज़े अभी बोल रही थी तभी अरूज की नज़र सामने कमरे से निकलते शहीर पर पड़ी। वो रहा मेरा दुश्मन, वो कहकर बिना अलीज़े की बात सुने शहीर की तरफ भागी। शहीर उसे देखकर ऊपर की तरफ भाग गया। हद है, इनका बचपना खत्म नहीं होगा, अब मुझे ये काम अंजाम देना पड़ेगा, अनचाहा काम, अलीज़े ने बेदिली से कहा और वकार के कमरे की तरफ चली गई। आज कई सालों बाद वो उस कमरे में दाखिल होने वाली थी जिसके लिए उसे बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो शीशे के सामने वो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने बिल्कुल तैयार था। बस अभी वो अपने माथे पर लगी पट्टी को उतारने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी ड्रेसिंग करके बाल बना सके।
तभी अलीज़े का अक्स शीशे में नजर आया। वो ग्रीन शरारा और येलो कुर्ती पहने जिस पर मोतियों का काम हुआ था, बालों की खूबसूरत चुटिया बनाए, फुल मेकअप में मुकम्मल तैयार खड़ी थी और दिल को छू जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। वकार ने बेख्तियार दिल में माशाल्लाह कहा। वो हाथ में वेस्टकोट पकड़े चलती हुई उसके पास आई। ज़हे नसीब, आज हमारे कमरे में कदम रखकर कमरे की शान कैसे बढ़ा दी। वो उसे निगाहों में भरते शरीर अंदाज में बोला। चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। अलीज़े ने एक नज़र उसे देखा और नागवारी से नज़रें फेर लीं। इस कमरे में तो बहुत अरमानों से कदम रखे थे, पर उन अरमानों पर किसी के धोखे ने पानी फेर दिया। वो शीशे में से उसे देखते हुए बोली थी, ओ, खुद तो कमाल की हो ही, अब तंज भी कमाल के मारने लगी हो तुम तो। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, ये चची ने भेजी है, पहन ले। वो उसकी बात इग्नोर करते वेस्टकोट बेड पर रखकर बोली और कमरे से जाने लगी। आउच। वकार ने उसे जाते हुए देखा तो जानबूझकर पट्टी को जोर से खींचा, जिससे तकलीफ हुई और पट्टी थोड़ी सी माथे पर अटक गई। क्या हुआ? वो एकदम से पलटकर बोली और उसकी तरफ देखा, जिसके माथे से खून बह रहा था। पट्टी को खींचने से जख्म खराब हुआ था। वकार चुप रहा और रुई पकड़कर खून साफ करने लगा। इधर दे, मैं करती हूँ। अलीज़े ने उसके हाथ से कॉटन ली और उसका जख्म साफ करने लगी। वकार यकटुक उसे देखे जा रहा था। उसको कोफ्त हो रही थी। अलीज़े माफ़ नहीं कर सकती, वकार ने उसे आंखों में बसाए बेखुद से अंदाज में कहा। अलीज़े के हाथ एक पल को ठहर से गए। वो जिस अंदाज से बोला था, जो आजिज़ी और बेबसी उसकी आवाज़ में अलीज़े ने महसूस की थी, वो अलीज़े का दिल धड़काने को काफ़ी थी। वकार, बेइंतहा मोहब्बत की थी मैंने आपसे, और ज़रूरी नहीं जिससे आपको मोहब्बत हो वो भी आपसे बदले में मोहब्बत करे। ये बात पहले ना सही, अब बहुत अच्छे से समझ आ गई है मुझे। और ज़िंदगी में एक लम्हा भी आपने मुझसे मोहब्बत नहीं की। आपने उस एक महीने में मुझ पर बस तरस खाया था, और मोहब्बत और तरस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि आपने मोहब्बत किसी और से की थी और वही अब तक आपकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मुझसे दोबारा रिश्ता आप सिर्फ अपने अंदर छुपे गिल्ट को कम करने के लिए जोड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ ऐसा करके ना खुद को तकलीफ़ दें और ना मुझे। मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकती। अलीज़े उसके ज़ख्म पर पट्टी लगाते हुए नम लहजे में बोल रही थी और वकार दम साधे उसे सुन रहा था। उसके लहजे में छुपे दर्द को वो भी महसूस कर रहा था। मिसेस वकार, आप कैसे मेरे दिल की बात खुद अखज़ कर सकती हैं? मैं किससे मोहब्बत करता था या अब मेरे दिल में क्या है वो आप सब खुद से कैसे सोच सकती हैं? क्या पता मेरा दिल बदल गया हो। वकार एक कदम उसकी तरफ बढ़ा था। उसके माथे पर आई बालों की लट को उसके कान के पीछे करते हुए मजबूत लहजे में बोला, तो अलीज़े के दिल की धड़कनें बढ़ीं, क्योंकि मैं आपको आपसे भी ज़्यादा जानती हूँ। आपकी पसंद नापसंद सोच सब जानती हूँ। अलीज़े 2 कदम पीछे होकर बोलते हुए एक पल के लिए ही उसे चुप करवा चुकी थी। ये तुम्हारी गलत फहमी है बेगम। वकार हाशिम को और उसके दिल में छुपे एहसासात को सिर्फ तभी जान सकती हो जब वकार हाशिम खुद चाहे। वकार ने बेड से वेस्टकोट पकड़कर पहनते हुए उसके करीब आकर कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला और बिना उसे समझने का मौका दिए आगे बढ़कर उसके माथे पर बोसा दिया और बिना उसका रिएक्शन जाने कमरे से बाहर निकलता चला गया। जानता था एक सेकंड भी वहाँ खड़ा रहता तो वो उसे थप्पड़ जड़ देती। और अलीज़े शौक और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ कमरे से बाहर निकली। डैड, हाउ आई एम लुकिंग। वो बाहर आया तो सीढ़ियों के पास ज़ैनब गोल गोल घूमकर अपना लहंगा उसे दिखाते हुए बोली, जो कि उसने पहली दफ़ा पहना था। उसका छोटा सा दुपट्टा भी वो संभाल नहीं पा रही थी। जस्ट लुक लाइक माई प्रिंसेस। वकार उसे गोद में उठाते उसके गाल चूमते हुए बोला। अलीज़े ने यह खूबसूरत मंजर देखा। वो एक बात तो जान चुकी थी, वो और कुछ ना सही लेकिन एक अच्छा बाप ज़रूर साबित हुआ था। ज़ैनब के साथ वो बिल्कुल उसका बेस्ट फ्रेंड बनकर रहता था और आजकल वो आयान को भी भरपूर वक्त दे रहा था और आयान भी उसके साथ बहुत अटैच हो रहा था। और यही बात अलीज़े को परेशान कर रही थी। वकार ज़ैनब से बातें करता नीचे उतर रहा था जब उस्मान अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वो रामीन को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दिए जा रहा था, कहाँ थी तुम? कुत्तों की तरह कब से चिल्ला रहा हूँ, तुम्हें सजने से ही फुर्सत नहीं? उस्मान ने जानबूझकर उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। जानता था वकार देख रहा है, वो उसे दिखाना चाहता था
कि जब बहन को दर्द हो तो कैसे महसूस होता है, पर यहाँ पर भी वो खुद को सही समझ रहा था। वो पूरे हक से ये सब करता, पर ये नहीं जानता था कि वो गलत कर रहा है। वकार ने पहले भी कई मर्तबा उसका रवैया नोट किया। वो अक्सर जानबूझकर उसके सामने ये सब करता। रामीन उसे कपड़े देने के लिए कमरे में चली गई। उस्मान ने तंजिया अंदाज में वकार को देखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वकार ने बमुश्किल गुस्सा कंट्रोल किया। वो उसे नीचा दिखाने के लिए अपनी ही बीवी के साथ इतना गलत कर रहा था। वो ज़ैनब को लिए गार्डन में आ गया। मेहमान आ चुके थे। अलीज़े उसके पीछे ही दाखिल हुई। वो मेहमानों से मिल रही थी। मुआज़ अपनी वालदा और बहन के साथ बाहर आ चुका था। जब से वकार को उसकी इंटेंशन पता चली थी, वो उसे हद से ज़्यादा बुरा लगने लगा था। डैड! आयान भागकर वकार की टांग के साथ चिपका। वकार ने उसे अपने दूसरे बाजू में लिया। ज़ैनब और आयान को उठाए वो एक तरफ खड़ा हुआ। डैड, ज़्यादा प्यारा कौन लग रहा है, मैं या आयान? ज़ैनब ने आयान के बाल बिगाड़ते हुए पूछा। वकार उसकी बात पर कहकहा लगाकर हंसा। वहाँ पर खड़े काफ़ी लोगों ने उसकी हंसी पर उसकी तरफ देखा, जो अपने बच्चों के साथ मगन था। उनमें से एक अलीज़े भी थी, जो उन तीनों को इस तरह हंसते देख बस चुप थी। कोई एक्सप्रेशन उसके फेस पर नहीं था। 1 महीने में उसे फैसला करना था, जिससे उन चारों की ज़िंदगी पर काफ़ी असर होना था। मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। अब उनके सामने उनके डैड थोड़े से फीके लग रहे हैं। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। आयान और ज़ैनब उसकी गर्दन के गिर्द हाथ डालकर हक करने लगे।